Hi everyone, this is Jenish Kuta here and welcome to our video of accounts. So students, in today's lecture, I'm going to record um, our chapter number 4 from our 11th standard textbook, State Board, Maharashtra Board, and the name of the chapter is Ledger. And students, what do we need to do? We are going to solve a sum on this particular chapter, and I'm going to go on page number 118 and sum number 3. I will just repeat. This is our State Board textbook, Maharashtra Board textbook, and we're dealing with chapter number 4, accounts, 11th standard, and I'm going to start directly with the sum. Okay, so students, so this is the textbook, and it's page number 118, and you can see the question is written over here, and the question says, from the following transaction, prepare necessary ledger accounts in the books of Vinay and balance the same. And later on, what do we need to do? We are going to balance it also. Fine, students. So of course, students, we cannot do the ledgers. Okay, we cannot do the posting of the ledger without journal entries. So what do we need to do? We are going to solve journal entries first from the given transactions, and once the journal entries has been put down nicely, we're going to start with the posting into the ledger, and finally we are also going to make trial balance in this particular sum. ओके बच्चे लोग, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू इट. It will surely motivate us a lot to work more and more harder and make more videos for all of you guys. Okay, and like the video, of course, come and drop some comment. Yeah, so students, you can see on the screen, on the right hand side, I have again written all the questions so that I can form the journal entries. Now students, how to frame journal entries, how to do the journal entry part. If you are not good with it, I have already made a lot of videos on the chapter journal entries. I will also give you the link of the playlist in the description of the chapter journal entries. So right now, what am I assuming? That you guys already know journal entries of the chapter number 3, and that is why you're here in your chapter number 4 to do the ledger part. Okay, students? So I am not explaining you exactly how these journal entries have come up. I'm going to discuss with you once. And what am I going to teach you in this particular video is how to do the posting of all the journal entries into the ledger. Okay, guys. So starting the first one, started business with cash 10,000. So you can see over here, first date, I have already written over here cash to capital. So cash comes in and capital. Okay, so यहाँ पे journal entries मैंने लिखी है. Second, bought goods from Vikas. So purchase to Vikas. And 9th date, sold goods to Bhushan. So Bhushan to sales. So if you remember, purchase हमेशा debit होता है, sales हमेशा credit होता है, क्योंकि purchase हमारे लिए expense है और sales हमारे लिए income है. 12 डे 12 स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? पेड टू विकास ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मींस हम उसका हिसाब किताब का जितना बाकी है. सो विकास टू कैश आएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे वी आर पेइंग टू विकास, विकास इज द रिसीवर. 19th रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, आ रहा है पैसा, तो कैश टू भूषण, हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड भूषण इज द गिवर. 25th कैश परचेज है स्टूडेंट्स, तो परचेज और बाद में कैश चला गया. एंड 30th कैश सेल्स, कैश आ रहा है एंड माल गया सेल्स. एंड लास्ट 31st paid wages, so wages to cash. So I assume students, or I hope that you guys already know journal entries. आज हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर बनाने वाले हैं लेजर बनाने वाले स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी लेजर बनाने के लिए कैसे बनाना है. तो पहले जर्नल एंट्री पास करनी है स्टूडेंट्स. अब हम काउंट करेंगे टोटल कितने लेजर हैं. तो एक हमें कैश का लेजर बनाना है, एक हमें कैपिटल का लेजर बनाना है, फिर एक हमें परचेज का लेजर बनाना है स्टूडेंट्स, और फिर एक हम विकास का लेजर बनाएंगे नंबर 4. उसके बाद 5th हम बनाएंगे भूषण का लेजर, 6th हम बनाएंगे सेल्स का लेजर. और विकास हो गया, कैश हो गया, कैश भूषण हो गया, परचेज हो गया, कैश कैश सेल्स, ओकेशनल्स और वेजेस. So I can only see we have to make 7 ledgers in this particular sum. Okay, in all we are going to make 7 ledgers, 1 2 3. So जो भी नाम मिलेंगे स्टूडेंट्स, उन सब के एक 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 लेजर बनेंगे. अगर जीएसटी भी होगा तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, सबके अलग 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 लेजर बनेंगे. फाइन. सो 7 लेजर्स बनाने हैं. तो स्टूडेंट 7 लेजर्स मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रेडी कर दिया है. You can see on the screen the 7 ledgers over here. And first ledger मेरा यहाँ पे कैश अकाउंट है. मैंने सब में 2019 लिख दिया स्टूडेंट्स. अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक जर्नल एंट्री को चुन चुनकर पकड़कर स्टूडेंट्स हम उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? लेजर में पोस्ट करने वाले. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मैंने सारे के सारे 7 लेजर यहाँ पर बना दिए स्टूडेंट्स. मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फिलहाल वीडियो की इतनी जरूरत नहीं है. हमें अच्छे से स्क्रीन पे देखना है कि क्या है, क्या दिख रहा है हमें. ओके, सो
लेट्स सी फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है हमें? फर्स्ट क्या है? कैश टू कैपिटल। चलो अब ध्यान रखना, कैश टू कैपिटल है, 1 तारीख है, तो मैं Jan 1 लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। और कैश टू कैपिटल तो कैश के डेबिट में आएगा स्टूडेंट्स, कैश डेबिट हो रहा है, तो ये कैश का लेजर है, तो कैश के डेबिट में लिखूंगा मैं कैश के घर पे कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स? अमाउंट मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, वहां तक जाने, 10,000 रुपीज है अमाउंट, 10,000 रुपीज। ओके, तो कैश के घर पे कैपिटल, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी क्या आएगा? सेम सेम डेट डालेंगे, और कैपिटल के घर पे कैश बाय कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? तो कैश के डेबिट में मैंने कैपिटल लिखा है, और कैपिटल के क्रेडिट में मैंने कैश लिखा है, तो बेसिकली मैं इसको क्या बोलूंगा? कैश के घर पे कैपिटल, और कैपिटल के घर पे कैश। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होना कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट। अब 6 तारीख के स्टूडेंट्स, परचेज टू विकास 3,000। तो परचेज टू विकास, तो स्टूडेंट्स मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगा पहले तो, Jan 6 परचेज टू विकास, तो परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज के अंदर मैं परचेज का नाम कभी नहीं लिख सकता, तो सामने वाले का नाम लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, और अमाउंट इज 3,000 रुपीज। ओके, तो परचेज के घर पे विकास, और विकास के घर पे जाएंगे स्टूडेंट्स, विकास के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? विकास के यहाँ पे लिखेंगे अगेन Jan 6 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट आएगा 6,000, नहीं 3,000। ओके, तो स्टूडेंट्स वापस मैंने सेम वही किया है, परचेज के घर पे विकास लिखा और विकास के घर पे परचेज लिखा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ, आफ्टर दैट इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखेंगे हम, 6 तारीख हो गई, 9 तारीख, भूषण टू सेल्स। ओके, भूषण टू सेल्स, तो यहाँ पे है भूषण आएगा, भूषण टू सेल्स, लेट्स सी भूषण टू सेल्स, एंड वेयर इज भूषण? यहाँ पे मैंने भूषण अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स, भूषण की स्पेलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम। ओके, भूषण के घर पे सेल्स लिखना है, और स्टूडेंट्स ये डेट कौन सी है? डेट है 9 तारीख 2,400, तो भूषण के घर से शुरू करेंगे, Jan 9, भूषण के घर पे। ओके, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 2,400, भूषण के घर पे सेल्स, तो अब हम क्या करेंगे? Jan 9 यहाँ भी लिखूंगा मैं। ओके, बाय भूषण के घर पे सेल्स, तो सेल्स के घर पे भूषण अकाउंट, और भूषण अकाउंट, और स्टूडेंट्स कितना अमाउंट आएगा? 2,400, 2,400, परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेट, वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 9 भी हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ेंगे, 9 के बाद स्टूडेंट्स क्या तारीख है? उसके 12 तारीख है, विकास टू कैश। चलो विकास टू कैश, स्टूडेंट्स आई कैन सी विकास ओवर हियर, 12 तारीख है, 12 तारीख है, तो विकास टू कैश, तो विकास के घर पे कैश लिख रहा हूँ। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 1,600 है, 1,600, तो विकास के घर पे कैश। अब मुझे कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, विकास के घर पे कैश, तो कैश के घर पे विकास लिखूंगा यहाँ पे। तारीख कितना है यहाँ पे? 12th, Jan 12, यहाँ पे आएगा बाय विकास अकाउंट। ओके फाइन, तो स्टूडेंट्स क्या था? ये विकास था, पे टू विकास, हमने पे किया, कितना पे किया हमने विकास को? 1,600 रुपीज पे किया, 1,600, सिंपल एकदम स्टूडेंट्स। तो मैंने विकास के पे कैश लिख दिया, और कैश के पे विकास लिख दिया 1,600। नेक्स्ट आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब 9 तारीख के बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा कौन सा तारीख? 12 तारीख हो चुका है। 19 रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, तो रिसीव हुआ स्टूडेंट्स, तो एंट्री आएगी कैश टू भूषण। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। ओके, कैश टू भूषण, तो कैश के डेबिट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और क्या तारीख है यहाँ पर? 19 तारीख है, 19 है, 19 है, टू भूषण अकाउंट। हमारे पास पैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना पैसा आ रहा है? 1,000 रुपीज आ रहा है, 1,000 रुपीज आ रहा है, कैश टू भूषण, तो कैश के घर पे भूषण, तो अब भूषण के घर पे कैश लिखेंगे, भूषण के घर पे कैश बाय कैश अकाउंट, तारीख है 19, अमाउंट है 1,000 रुपीज। ग्रेट, तो कैश के घर पे भूषण और भूषण के घर पे कैश। नाइस, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद कैश परचेज है, कैश परचेज की एंट्री क्या आएगी? परचेज टू कैश, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई होप आप लोग ने कंप्लीट भी कर दिया होगा, इसको कॉपी किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, तो परचेज टू कैश है, तो स्टूडेंट्स परचेज से शुरू करेंगे, और क्या तारीख है ये परचेज टू कैश का? 25 तारीख है, 25 तारीख है, परचेज के घर पे टू कैश अकाउंट, और कितना अमाउंट है? कैश ना 3,600 रुपीज, 3,600 रुपीज, तो कैश परचेज के घर पे कैश,
अब कैश के घर पे स्टूडेंट्स परचेज लिखेंगे, 25 तारीख है, बाय परचेज अकाउंट 3600, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स स्टूडेंट्स। अब कैश सेल्स है, तारीख देखेंगे हम 30 तारीख है कैश टू सेल्स, कम ऑन 30 तारीख है कैश टू सेल्स। चलो तो यहाँ पे 30 तारीख लिख रहा हूँ। तो कैश के घर पे जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड लिखेंगे, कैश टू सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स कैश टू सेल्स में? अमाउंट था 5000 रुपीज। तो कैश के घर पे सेल्स, अब सेल्स के घर पे, चलो सेल्स के घर पे कैश 30 तारीख आएगा और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5000 रुपीज। एंड गोइंग विद द लास्ट जनरल नाउ पेड वेजेस। हमने वेजेस पे किया, तारीख देखेंगे 31 तारीख को वेजेस टू कैश। चलो 31 तारीख वेजेस टू कैश, यहाँ पे वेजेस अकाउंट है हमारे पास। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट है 400। तो वेजेस के घर पे कैश, अब कैश के घर पे वेजेस है ना। ओके बाय वेजेस अकाउंट और अमाउंट आएगा 400 रुपये। परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा लेजर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके पोस्टिंग हमने जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करनी थी स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स वो वाला पार्ट हमने क्या कर दिया यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ग्रेट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको क्लोज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी आसान था, काफी आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा आप लोग फॉर्मेट अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू मेक द फॉर्मेट। मोस्टली एक पेज पे 2 या 3 लेजर बनते हैं, चौथा डालने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा। या सो अब स्टूडेंट्स मैं आपको डिफिकल्ट पार्ट बताने वाला हूँ, हाउ टू क्लोज दिस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कैश अकाउंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द कैश अकाउंट पार्ट। और बताओ कैश अकाउंट का विच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट, टेल मी दैट। तो यस डेबिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है, 10 15 16,000 रुपीज है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 16 है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, सेम 16,000 लिख देंगे। अब 16 में से बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो डेबिट साइड हैवी था स्टूडेंट्स, डेबिट साइड हैवी था। ये इसका देखो डेबिट साइड है यहाँ पर। ओके हमें बताइए, तो स्टूडेंट्स का डेबिट हैवी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा अब 16,000 में से क्रेडिट साइड चेक करते हैं, 3,600 और 400, 4,000 और 5,600। स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड का टोटल आप करेंगे 5,600 आ रहा है, तो 16,000 माइनस 5,600 विल कम टू 10,400। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, इधर 31 तारीख को है ना, जनवरी की लास्ट डेट। स्टूडेंट जनवरी महीने की लास्ट डेट क्या होती है, 31 तारीख, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम योर फरवरी का ओपनिंग बैलेंस, फरवरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,400, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आप लोग को एक चीज करके बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये जो बैलेंस अमाउंट आता है 31 तारीख का, उसको आपको ऐसे पेंसिल से सर्कल करना है। ओके आप याद रखो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, पर आप याद रखना इसको रेड कलर से आपको सर्कल करना है। इज दैट ओके? चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमने इसको क्लोज कर दिया। याद रखना 31 तारीख जो लास्ट डे होता है वो हमेशा CD होता है, और जो फर्स्ट डे होता है हमेशा BD होता है, ब्रॉट डाउन। तो जो लास्ट आता है लाइफ में भी स्टूडेंट्स, जो लास्ट होता है वो हमेशा C होता है। आप अग्री करोगे? तो स्टूडेंट्स वो C हो गया, और जो फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स लाइफ में वो हमेशा B होता है, ब्रिलियंट, वो ब्रिलियंट होता है, ठीक है। मैं C मतलब क्यूट बोल रहा था ऑफकोर्स, हाँ हाँ। चलो अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन सेम तिकड़म यूज करेंगे, लेस यूज। टेल मी व्हिच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड दिख रहा है हैवी है, जो साइड हैवी है उसके सामने भी वही लिख दो। अब 10,000 माइनस 0 तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10,000 ही होगा। इस महीने की एक्सिट लास्ट डेट क्या, 31 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, जो लास्ट है वो हमेशा C होता है। और इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का स्टूडेंट्स क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरह से आपको सब कुछ क्लोज करना है 10,000। ओके यहाँ पे 2 अकाउंट मैंने क्लोज कर दिए। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन नाउ, परचेज। स्टूडेंट्स परचेज क्या है, 6,600 हैवी है, डेबिट साइड हैवी है, तो उतना ही हम ये साइड भी लिख देंगे। 6,600 माइनस 0 कितना होता है, 6,600 होगा। जनवरी की लास्ट डेट लिख दी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या होगा स्टूडेंट्स, अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके 6,600। ओके थर्ड अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। मूविंग फॉर टू विकास का अकाउंट स्टूडेंट्स, विकास का अकाउंट क्या है, क्रेडिट साइड हैवी है 3,000, तो यहाँ 3,000 है, यहाँ भी 3,000 लिखेंगे। व्हाट इज 3,000 माइनस 1,600 विल कम टू 1,400। जो टोटल होता है वो सामने सामने सेम आना चाहिए। ओके इस महीने की आखिरी डेट 31 तारीख है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या होगा स्टूडेंट्स, अगला महीना कौन सा है, फेब्रुवरी महीना है, तो फेब्रुवरी में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 1,000। 1,000 लिखेंगे। 1,000 माइनस 1,600 विल कम टू 1,400। 1,400 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 मा
400। ओके, चलो विकास के बाद मैं नीचे अभी दूसरा एक सेल्स अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। सेल्स में कितना था? 7,400, 7,400। यहाँ 7,400 है, तो यहाँ भी 7,400 लिखेंगे, और यहाँ पे भी आएगा 7,400। ये 31 तारीख है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरी डाउन। और इसके बाद अगले महीने कौन सी डेट आएगी? Feb 1, यानी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सेम 7,400। आई होप आपको समझ रहा है। मैं एक और बार वापस अच्छे से बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो, अब मैं भूषण अकाउंट क्लोज करने वाला हूँ। मैं भूषण का अकाउंट क्लोज करूंगा स्टूडेंट्स। भूषण का कैश 1,000 ना, भूषण का कैश 19 है, यहाँ पे मैं 19 लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, में डेबिट हैवी, देखो जो साइड हैवी है पहले वो साइड लिख देंगे। डेबिट हैवी है तो यहाँ पे 2,400, यहाँ भी लिखेंगे 2,400। 2,400 माइनस 1,000 विल कम टू 1,400। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे यहाँ पे, और लास्ट डेट है 31 तारीख। अब अगले महीने की 1 तारीख क्या होगी स्टूडेंट्स? फेब की 1 तारीख है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और आएगा 2,400। ओके, एंड गोइंग विद द लास्ट वन नाउ, वेजेस स्टूडेंट्स। वेजेस 400 है, यहाँ पे डेबिट हैवी है, तो यहाँ भी 400 लिखेंगे। व्हाट इज 400 माइनस 0? 400 ऑफ कोर्स। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या 31 तारीख आएगी। तो इस महीने की क्लोजिंग अगले महीने की क्या होगी स्टूडेंट्स? ओपनिंग हो जाएगी Feb 1, 2 बैलेंस, ब्रॉड डाउन, यहाँ भी 400। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया फिलहाल? लेजर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हमारा चैप्टर, हमारा ये वाला सम कंप्लीट हुआ नहीं। अभी एक आखिरी पार्ट बाकी है, हमें बैलेंस करना है इन सबको। तो बैलेंस कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, मैं आपको अभी बताऊंगा विद इन अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू कैन सी नाउ व्हाट हैव आई डन ओवर हियर, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग से। आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख सकते हो अच्छे से। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखकर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया, 4 सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और रुपीस का साइन किया। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जितने भी हमारे लेजर के स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस आए और नेक्स्ट मंथ का वो क्या है, ओपनिंग, तो सबका फर्स्ट फेब का स्टूडेंट्स अमाउंट लेकर आएंगे हम। देखो, तो मैं सबसे पहले कैश अकाउंट जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट में स्टूडेंट्स मेरा क्या है यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश अकाउंट में इफ यू कैन सी ओवर हियर, कैश अकाउंट में स्टूडेंट्स 1 फरवरी है हमारा। 1 फरवरी है, और डेबिट बैलेंस है 10,400। तो 1 फरवरी 10,400 हमारा बैलेंस है। ठीक है, ओके, इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ थोड़ा सा। फाइन, और यहाँ पे हमारा टोटल आने वाला है, उसको मैं लाइन कर लेता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 10,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हमारा 10,000 रुपीज है। फाइन, ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट है परचेज है स्टूडेंट्स। परचेज का डेबिट बैलेंस 6,600 है। परचेज का डेबिट बैलेंस है 6,600, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ परचेज 6,600 डेबिट बैलेंस है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैं विकास में जाने वाला हूँ। लेट्स गो टू विकास। और स्टूडेंट्स विकास का हमारा क्रेडिट बैलेंस, मैं 1 फरवरी देख रहा हूँ। 1 फरवरी 1,400, तो क्रेडिट बैलेंस 1,400। तो विकास का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है 1,400। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट भूषण में जा रहा हूँ, मैं भूषण में जा रहा हूँ। भूषण में आई कैन सी ओवर हियर, भूषण में स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस है 2,400। डेबिट बैलेंस है 2,400 का। ओके, डेबिट बैलेंस है 2,400। 2,400 का डेबिट बैलेंस है। अब सेल्स और वेजेस दो ही बाकी स्टूडेंट्स, चलो मैं साथ में देख के आ जाऊंगा दोनों। सेल्स में इफ आई कैन सी ओवर हियर, क्रेडिट बैलेंस है 7,400 का। 7,400, 7,400 का क्रेडिट बैलेंस है 7,400। और वेजेस में स्टूडेंट्स मुझे पता है 400 बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अभी टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं ओरली भी टोटल कर सकता हूँ वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, तो यहाँ टोटल करके हमें क्या पता चलेगा। मैं रुपीस का साइन डाल देता हूँ इसमें। रुपीस का साइन है नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, चलो ओरली कैलकुलेट कर देंगे स्टूडेंट्स। आई कैन सी ओवर हियर क्रेडिट बैलेंस तो 10,000, 11, 18,800 है। और यहाँ पर ये कितना, 10 और 6 16, 16 और 2 16,000 हो रहा है, 18,000 हो रहा है। 10, 11, यस, तो ये भूषण का स्टूडेंट्स 1,400 है। तो 10, 16, 17, 17 और 18, और 18,400। तो स्टूडेंट्स
18,400 और 18,800, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे मैच हो रहा है, यू कैन सी ओवर हियर 18,800, 18,800, 10, 16, 17, 18 और 18,800। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, अगर हम एकदम इसको समराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने लेजर करके पूरा का पूरा एक सम सॉल्व किया है अच्छे से, और वो सम सॉल्व के साथ साथ स्टूडेंट्स कैसे पोस्टिंग की जाती है डायरेक्टली लेजर से, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जा सकती है, एंड ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप द वीडियो हैज हेल्प्ड यू। इफ द वीडियो हैज हेल्प्ड यू, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much, students. It was nice having all of you. Bye bye. Take care.